सब घट सब घट रामा बोले रे रामा बोले रे सब घट रामा बोले रे सब घट रामा। गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वताद सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। We are very happy that most revered Gautamanandaji Maharaj is here with us, because 3 years before
in 2019, on the Jagaddatri Puja Day, he laid the foundation for this center, and 3 years it has become a reality. And also, our revered Swami Shiviranandji has kindly consented to be the chief guest of this function, this evening public meeting. It's a matter of great joy. We also have with us Swami Shuddhitanandji, the president of our Mayavati Ashrama, and our Raghavendranji, who has now taken charge of Jain Center. We're all here. Of course, we should also welcome Swami Asmat Shraddhananji, because he is going to anchor the program on all the 3 days. A warm welcome to all the monks who have really taken so much trouble to come from different parts of the country to be here as part of this extraordinary occasion. Because no, in fact, it's a very rare gathering where monks from all over India gather to participate in a dedication ceremony. And of course, our own devotees, the devotees of Delhi, devotees of Gurugram, all are here. So obviously, the cup is full, brimming with joy actually. 125 साल बहुत ही लंबी समय है. It's a long period, 125 years of unblemished record in the history of any institution for that matter. But the starting was not an easy thing. Swami Vivekananda virtually brought about a revolution in the monastic order of this great nation, Bharat. क्योंकि जब उन्होंने पश्चिम देश से वापस आया, ऐसे कुछ संघ स्थापना की बात की, even his own brother disciples were not willing to accept it. Some of them, Yoganand ji and others, they said, आप चीज़ कहाँ से ले आए तुम? Sri Ramakrishna always used to talk about realizing God as the only goal of life. तुम क्या सब सेवा फेवा काम दाम की बात करते हो? So it took tremendous effort on the part of Swamiji to convince his brother disciples. And finally, he has to invoke his own spiritual dimension. When all arguments virtually failed, he went into the old temple, entered into a deep state of meditation. Out of sheer fright that he might give up his body, the other disciples said, "Hey, chalo, come," like that. They just like that buried all differences and then accepted the proposition, and that is how the Sangha came into existence. The mark of our respect and welcome and love for seniors, we now present shawls to Revered Swami Gautamanandaji Maharaj. Senior Vice President Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. To Revered Swami Shiviranandaji Maharaj, General Secretary Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. And to Swami Shuddhitanandaji, Adhyaksha Advaita Ashram Mayavati in Uttarakhand. And Swami Raghavendranandaji, the Secretary of would-be affiliated center at Ujjain. At the very outset, I would like to convey my most hearty congratulations to Revered Shantatmanandaji Maharaj for being instrumental in founding this new center in the state of Haryana. We all know this is the first Ramakrishna Mission's first center in the state of Haryana, and this is being done in a year when Ramakrishna Mission is celebrating its 125th anniversary.
Nothing could have been more apt and timely than this event. So I pray to God, may he have a good health and long life, and may many more good things God done through his instrumentality. स्वामी जी कहते हैं कि एक जरा से झोपड़े में मनुष्य, बकरियां, मुर्गियां, कुत्ता सब एक साथ प्रेम से रात को सो रहे हैं, ऐसा भारत में 80% झोपड़ियों में मिलता था उस जमाने में, जब स्वामी जी अपनी पैदल यात्रा कर रहे थे, जिसका उल्लेख अभी शुद्धिरानंद जी ने किया। वास्तविक भारत एक दरिद्र और भटका हुआ, अज्ञान से घिरा हुआ, और अज्ञान किसका, किस बात का अज्ञान? अज्ञान सत्य का। हम कौन हैं, क्या है, स्वरूप क्या है, भारत देश सब भूल गया था। उपनिषदों के महान ऋषि इसी देश में पैदा हुए, उन्होंने हमें इतना महान तत्व बताया है कि यहाँ केवल एक सत्ता विराजमान है, उस एक सत्ता को छोड़कर कुछ नहीं। अगर कुछ है तो अज्ञान के कारण अनेकता दिखती है। ये भारत का जो धर्म है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए श्री रामकृष्ण देव इस धराधाम में अवतरित हुए थे। श्री रामकृष्ण अकेले नहीं आए थे, श्री रामकृष्ण देव के साथ ईश्वरी शक्ति, ब्रह्म शक्ति, महामाया साक्षात आविर्भूत हुई थी श्री मां शारदा देवी के रूप में, और उनकी लीला में इस संदेश को पूरी पृथ्वी में फैलाने के लिए उन्हीं के समतुल्य, अगर श्री राम कृष्ण देव को हम अवतार कहते हैं तो विवेकानंद जी को अवतार कोटि, अवतार कल्प महापुरुष बोला जाता है। ऐसे जैसे एक है दोनों, और ये अवतार कल्प, अवतार कोटि श्रेष्ठ विवेकानंद जी आए थे किस लिए? भारत का खोया हुआ धर्म, भारत की खोई हुई आत्मा, उसे पुनः देने के लिए। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापोहारिणे। At the very outset, I offer my salutations at the holy feet of Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharda Devi, and Swami Vivekananda. That even before Narendranath came to Sri Ramakrishna, the day he was born in North Calcutta, in his ancestral house, a streak of light was seen by Sri Ramakrishna coming from Lord Vishnunath's temple, touching the ground of Vishwanath Datta's house. And Sri Ramakrishna told, standing in Dakshineshwar itself, my man has come. And later on we find Swami Saradanandaji writes in the Great Master, in his characteristic inimitable style, he says in the flight of ecstasy, Sri Ramakrishna assumed the form of a boy, crossed the divided zone, entered into the undivided zone, and then he entered into the luminous zone, where he found 7 rishis absorbed in deep meditation. This boy, he went to one of them, clasped his neck with his hands, and whispered in his ear, I am going to the earth, you must follow me. Amazed to see Vivekananda, we are amazed to see Ramakrishna and Holy Mother's impact throughout the world today. And with these few words, I would like to congratulate Swami Shantatmanandaji Maharaj to arrange this function, celebration of 125 years of Ramakrishna Mission,
which is a historical necessity, which is a divine compulsion, and which is a landmark given in the history, history of modern India, nay, the history of the modern civilization. I must thank Swami Santatmanandaji, but before that, well, I will request, may I request all of you to give a big hand to this heroic monk, Swami Santatmanandaji, who has made this feat. Earlier, when I used to go to Vrindavan and pass by this Gurugram, I used to think in the heart of my hearts that this is the only state where we do not have a center. And Santatmanandaji has been made instrumental by Thakur Ma and Swamiji today to have this center and have this center in style. One of the most beautiful center that we have. And I am certain about it, I am absolutely sure about it, that this will grow from strength to strength. This will reach newer and newer heights. With these few words, I will not certainly congratulate him, but I will convey my loving regards to him that, well, Thakur has blessed him. We now request Srimat Swami Gautamanandaji Maharaj to give his presidential address. Om Stapakaya cha dharmasya सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय स्वामी सुवीरानंद जी, स्वामी शांतात्मानंद जी, सिद्धिदानंद जी, राघवेंद्रानंद जी और मेरे अन्य साधु वृंद, साधु भाइयों, साधु बहनों, भक्त भाइयों और बहनों, आज को ये बहुत सुंदर उत्सव शुरू हुआ है। ये उत्सव और 3 दिन चलने वाला है। आज को तो पहला दिन हो गया और 2 दिन ये उत्सव चलेगा। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी महास्वामी जी ने बताया, स्वामी शांतात्मानंद ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुंदर काम किया है। ये गुरुगांव में, ये हरियाणा स्टेट में पहला रामकृष्ण मिशन का शाखा खोलकर यहाँ की एक आवश्यकता जो थी उसको पूर्ति की है। हम इसके लिए हमारे वंदनाएं उसको समर्पित करते हैं, हमारे बधाइयाँ उनको देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री राम कृष्ण उनको और भी शक्ति दे के इस काम को और भी आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी बढ़ाने के लिए वे उनको भी तो मदद करें। स्वामी विवेकानंद विज्ञानी थे तो वे आके उनसे वही पूछा, आपने भगवान को देखा है? उसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, उनको स्वीकार करना पड़ा। जब कहते हैं कि मैंने देखा है, उसको तो प्रूव करने की क्या है? तुमको भी दिखा सकता हूँ, इसका रास्ता है, इसको रास्ता मैं बता सकता हूँ, ये रास्ता है योग। तो स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने बहुत कुछ उपदेश दिए जिसके जरिए हमें योग सिखाया, योगी भगवान को देखने का मार्ग है। तो ये उसमें भगवान है, इसकी श्रद्धा मनुष्यों के बीच में उन्होंने लाया। खास करके हमारा देश जिसकी शक्ति थी धर्म के अंदर, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, सारे विश्व धर्म के लिए सबसे बड़ा अवदान भारत ने जो दिया है वो धार्मिक धर्म का ध्यान है। अच्छा धर्म, जिस धर्म कहता है कि हम भगवान का प्रत्यक्ष देख सकते हैं, देखने के लिए मार्ग है,
तो सभी देख सकते हैं, सभी लोगों के लिए धर्म खुला हुआ है। तो ये देश, इसके अंदर श्रद्धा लाया स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने। ये श्रद्धा को स्वामी विवेकानंद ने तो खुद ही भगवान को दर्शन किया और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को सारे दुनिया में प्रसार किया। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के विजय को हम देखते हैं। तो पाश्चात्य देश में जाके जब भी लोग पूछते थे कि धर्म के बारे में भगवान को देखा जा सकता है, सब भी देख सकते हैं, उसमें तो कोई लिंग भेद नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई क्रीड, कोई फिलॉसफी का कोई व्यत्यास नहीं होता है, सभी देख सकते हैं। उसकी प्रणाली है योग। स्वामी जी ने योग भी सिखाया। Swami Yadavendranand ji will be accompanied on Pakvaj or on Kol by Swami Atmadipanand ji. फाल्गुने তুমি फाल्गुने पुल्ल कानन मनयानिल पुल्ल कानन मनयानिल कंपने कोकिल कुल कूजित कोकिल कुल कूजित मुखरित गुंजने कोकिल कुल कूजित मुखरित गुंजने তুমি এলে ফাল্গুনে দরারা दयानि भवानि दयानि भवानि दयानि भवानि दयानि महावाकवानि 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 सुरनरमुनि जनमानि सुरनरमुनि जनमानि दूसरो न कोई रे दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे दूसरो न कोई मेरे तो
न कोई रे, दूसरों न कोई, दूसरों दूसरों तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, आपनो न कोई रे, तात मात भ्रात बंधु, आपनो पालनकारिणी माँ, पालनकारिणी माँ, जय जय जननी जय श्री शारदामणि करुणारूपिणी जय माँ, जय शारदेश्वरी सीता राधा माता मेरी यशोधरा विष्णु प्रिया माँ, जय शारदेश्वरी सीता राधा माता मेरी यशोधरा विष्णु प्रिया माँ, जुगदेव वंदिता सुर नर सेविता जुगनव रखल राजार हाथ धरे ठाकुर रखल राजार हाथ धरे আমার ঠাকুর নগর ভ্রমণ করে আমার ঠাকুর এলেন ঘর, নগর ভ্রমণ করে নঙ্গে নিয়ে ঠাকুর এলাম শরণে। জয় জয় রামকৃষ্ণ শরণম রামকৃষ্ণ শরণম রামকৃষ্ণ শরণম শরণে, জয় জয় রামকৃষ্ণ শরণম রামকৃষ্ণ শরণম রামকৃষ্ণ শরণম শরণে, রামকৃষ্ণ শরণম রামকৃষ্ণ শরণম রামকৃষ্ণ শরণম शरणे। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय श्री श्री जगद्धात्री माई। दूसरों न कोई।
जमीन की बिना कुछ नहीं होता था, आप तो जमीन की उससे ही शुरुआत है। हम तो बताएंगे सारा संघ की तरफ से, भक्त की तरफ से, सबको तरफ से हम अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री दूसरा शब्द कहेंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ लोग को उनकी करकमल से कुछ सम्मान दिलवाना था, आज वही करके उन्होंने यहाँ से निकल जाएंगे। नमस्कार। हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत। श्री रामकृष्ण मठ के व श्री रामकृष्ण मिशन के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय परम पूजनीय श्रीमत स्वामी गौतमानंद महाराज जी, परम आदरणीय स्वामी सुखानंद महाराज जी, स्वामी सुवीरानंद महाराज जी, स्वामी रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शांत आत्मानंद जी, उपस्थित अन्य संतजन, देवियों सज्जनों, मेरे लिए बहुत ही आज ये सौभाग्य का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में संत जनों का एक साथ दर्शन मुझे हो रहे हैं और मैं अभिभूत हूँ इस दृश्य को देख करके, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के समय से मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का यानी जो पौधे उस समय लगाए गए थे वो किस प्रकार एक वट वृक्ष बन करके सारे न केवल देश में बल्कि दुनिया में उनको फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अभी तक जो मुझे बताया गया कि इस प्रकार के केंद्र 200 केंद्र अपने हैं देश विदेश में, और हरियाणा में ये पहला केंद्र है जो हमको ये उपलब्ध हुआ है। श्री दिनेश चड्डा, जितेंद्र जुनेजा, एयर कंडीशनिंग प्रोटेक्शन सर्विसेज, बट पूर्णिमा, श्री पंकज is always there at the site. Now our Honourable Chief Minister has to. लेकिन हम सब उनसे बहुत ही अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सब घट सब
रामा बोले रे सब गढ़ रामा बोले रे सब गढ़ हाँ सब गढ़ हाँ सब गढ़ रामा बोले रे सब गढ़ रामा बोले रे सब गढ़ रामा बोले रे राम बिना राम बिना राम बिना को बोले रे राम बिना को बोले रे सब गढ़ रामा 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 बोले सब गढ़ रामा What a soul-filling music. Because she's her most favored artist. In Delhi Ashma here, she has already sung thrice or so. So I thought, considering the sacredness of the association and the deep spiritual significance, I thought she is the best person. Because something is very extraordinary in her music. There are other talented artists also, no doubt. But she has been, if it is one choice, if I have to listen to one person, it will be Ashwini-ji. Because so nice. Because it's something, she brings a different flavor, different quality. Apart from that wonderful rag, lay, tal, and her sweet voice, so much of devotion. She pours her heart into her music. We only pray to Sri Ramakrishna Mother and Swamiji that she be blessed with long life and should continue to delight devotees and fans for decades to come. Thank you, Ashwini-ji. सोई कुशल जो तप जियो करना सबल होता ये दुर्बल देही सबल होता ये दुर्बल देही जाको सतगुरु मैया के रही ऐसी मांग गोविंद ते ऐसी मांग गोविंद तेरे टहल संतान की संग सा। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Revered Swami Sarvalokananji, our dear Swamis Muktidanandji and Bodhamayanji, and also our very, very dear Srinivas. He and some of his team members are here, but a major chunk is back in their Bombay office. They have been greatly instrumental in this whole work. Their contribution is something immense, and only time, history would say that what they have done in this regard. Is expressed in the Indian cultural context in the form of dharma. Dharma is the one thing, is basis for everything, and the Indian spiritual scientist or social scientist or behavioral scientist down the centuries have done an enormous work
on value education, enormous. और पंचतंत्र और उपदेश सारा, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, and all religions, for example, the Sermon on the Mount, have goaded the human mind to adopt the higher values and higher virtues. But repeatedly we are failing. Why? So this question of, because of the wrong emphasis, and we have yet to become a true student of life and nature. Find them and graded ideals for each community and take them from where they are to the next level, community by community across the country. And not just stop at giving them ideals, we have to give them the means to actually reduce those ideals into practice. It is not enough to tell people where you have to go, but you have to tell them how to go there. तुम्हारी सभ्यता में, संस्कृति में पोशाक और दर्जी किसी व्यक्ति को महान बनाता है, सभ्य बनाता है, लेकिन हमारी परंपरा में, भारतवर्ष की परंपरा में, सभ्यता में, संस्कृति में दर्जी और पोशाक किसी व्यक्ति को महान और सभ्य नहीं बनाता है। हमारे देश, हमारे परंपरा में, संस्कृति में चरित्र ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है, सभ्य बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, जो अंग्रेजी में एक कहावत है, ये कहावत बहुत ही सुंदर है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, everything is lost. Is not very much attached to the worldly things, not the virakta, not very much detached also from the worldly attachment, worldly things. These kind of people are fit for bhakti yoga. Bhakti yoga is beneficial for them. So most of us like this. So some amount of vairagya we should have, some amount of love for God, some amount of detestation for the worldly things. With that we begin our sadhana life, we begin the phase of our sadhana in our life. जोड़ना इतना आसान काम नहीं है, सिर्फ न केवल ये देश की समस्या इतनी है और दुनिया की समस्या कितनी होगी, तो दुनिया को कैसे जोड़े? कम से जब तक तो दुनिया जुड़ेगा नहीं तब तक तो विश्व शांति, तो विश्व सौहार्द, ये सब तो बड़ी तो कोई पे करके बात हो जाएगी, तो कोई अर्थपूर्ण बात नहीं होगा। इसलिए तो दुनिया को कैसे जोड़े? मनुष्य को जोड़ो। मनुष्य को कैसे जोड़ोगे? भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेशों से। ये कि एक उदाहरण दे के मैं समाप्त करूँगा। तो हमारे विशाखापट्टनम में बहुत से मछुआरों को स्वामी वीरेश्वरानंद जी ने दीक्षा दी थी। कुछ अनपढ़ हैं, बिल्कुल निरक्षर अनपढ़ हैं, तो उनको बहुत से करीब हजारों लोगों को, 1000-1500 लोगों को उन्होंने दीक्षा दी थी। उनमें से कुछ लोगों को इतनी इच्छा हुई, वीरेश्वरानंद जी शायद समाधिस्थ हो गए थे, महासमाधि प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मैं जब कलकत्ते में था, बेलूर मठ के पास में ही शारदा पीठ में मैं था, तब ये कुछ वो मछुआरे लोग तो श्री कामार पुकुर, जयराम वाटी, बेलूर देखने के लिए आए। उनका एक मुखिया था, वो मुखिया कुछ इंग्लिश जानता था, तेलुगु जानता था। ये मछुआरे लोग सिर्फ तेलुगु जानते हैं, मैं तेलुगु नहीं जानता था। मैं समझता हूँ, फिर बोल नहीं पाता। तो उन्होंने सुना कि स्वामी गौतमानंद जी हैं, तो सब लोगों को वे पसंद करते हैं, चलो उनसे मिलके जाएंगे। वो दक्षिण से हैं, वह सिर्फ वो सबको लेके आए। 30-40 से मछुआरे लोग निरक्षर, फिर बड़े आनंद से श्री राम कृष्ण देव के भगत हैं, तो जब करते हैं उनका मुंह से सुनाया गया
श्री रामकृष्ण देव के जीवन और उनके उपदेश, वो इतना उसका तो ग्रहण किया था, उनको इतनी भक्ति थी, तो वे बेलूर मठ के दर्शन किए, दक्षिणेश्वर और दूसरे उद्बोधन के दर्शन करे, आखिर में कमारपुकुर में गए, जयराम बाटी गए, मेरे पास आए। मुझे उनसे कुछ बात करना था, इसलिए उस मुखिया से कहा, तुम इनसे पूछो, तुम लोग कमारपुकुर जयराम बाटी गए, विशेष करके जयराम बाटी में गए, तुम्हारा क्या अनुभव हुआ? उन लोगों ने तुम लोगों को कैसा अगवानी करी, तुम लोगों को कैसा देखभाल किया, तुम 2-3 दिन वहाँ रहे? उसने उनसे पूछा। उन सब लोगों ने कहा, बहुत सुंदर हमारा अगवानी करी, हमको इतने प्रेम से देखा, हम वर्णन नहीं करते, इसको बातों से कह नहीं सकते, इतना आनंद हुआ हमें, मानो हमारे ही लोगों के बीच में आ गए हम, ऐसा मालूम हुआ। मैंने और एक कहा उस मुखिया को, तुम उनसे पूछो, अगर वो लोग तुम्हारे गांव में जाने से तुम क्या करोगे? उसने पूछा, उसके लिए उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने इतना प्रेम दिखाया, इतना अच्छा देखभाल करी, अपने घर वालों के जैसे हमसे बर्ताव किया, उससे भी ज्यादा हम करेंगे। मैंने कहा, ये ही है टीक रामकृष्ण देव का प्रभाव। और हमारे देश के लोग इसीलिए कहा था, एजुकेशन 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 अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है शिक्षा। जनसाधारण को भी शिक्षित करना पड़ेगा। और उसमें एक और उन्होंने बात कही थी कि आज हम देखते हैं कि हमारे देश में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट देने के बावजूद भी आज हमारे देश में 22% लोग निरक्षर हैं। शिक्षित तो चाल बहुत ही कम है, पर 22% लोग तो निरक्षर हैं, इलिटरेट। तो क्यों ऐसा है? इतने सालों में 75 साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी तक क्यों इतने सारे इलिटरेट है? उसका कारण यह है कि हमने स्वामी विवेकानंद के संदेश को महत्व नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने 20 जून 1894 को जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारीदास देसाई को पत्र में कहा था कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान, एकमात्र समाधान है शिक्षा। पर दीवान साहब, यदि आप प्रत्येक गांव में एक स्कूल को प्रारंभ कर भी देंगे तो जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, वे उस स्कूल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे इतने गरीब हैं, अपने पिताजी के साथ हल जोतने खेत में जाएंगे। तो ये समस्या बड़ी विकट है। तो समाधान क्या है? स्वामी जी का मैंने समाधान ढूंढ निकाला है। समाधान क्या है? यदि पर्वत मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद को पर्वत के पास जाना चाहिए। कहने का मतलब, यदि ये लोग शिक्षा तक नहीं आ सकते हैं तो शिक्षा को उनके पास जाना चाहिए। जब वो लोग रात को, शाम को उनका कार्य समाप्त हो गया, उस समय रात्रि पाठशाला की जा सकती है, नाइट स्कूल की जा सकती है। और स्वामी विवेकानंद हमेशा मानते थे जनसाधारण की शिक्षा अनौपचारिक होनी चाहिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर वे बहुत ध्यान देते थे। और इस पर रामकृष्ण मिशन के द्वारा कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हम लोगों ने कई अनौपचारिक शाला स्कूलें खुली है कई सेंटर्स में। रांची मोराबादी में दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में तो मैं स्वयं था, मुझे 10 साल का वहाँ पर वो अनुभव है किस प्रकार से वहाँ पर नाइट स्कूल के माध्यम से सारे गांवों का विकास हो रहा है। He comes and when he asks that, well gentlemen, when you were standing here, then they say that there is a cobra, and if we proceed, this cobra may bite and we may die. This gentleman brings out his torch and lights his torch, and he not only himself finds, he shows it to everybody that this is not a cobra, this is a piece of rope, and this is ignorance. Which is why I personally feel that the word that we should use as far as manifestation of perfection, what it is, we are perfect. Nitya Shuddha Buddha Sabhavo. That is the very basic word of Vedanta. So naturally, we are perfect. Swamiji Samohar says, had I been a householder, had I had a child, immediately after his birth, I would have put him in the cradle and told him Tamosini Ranjana. You are that supreme being.
So this is there. In everybody, God is there, each soul is potentially divine. শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপ কাঠিতে শ্যামা নামের লাগলো আগুন আমার দেহ ধূপ কাঠিতে যত জালি সুবাস তত So we thank all of them heartily. Finally we thank all the monks who came and made this function a grand success. It was all the presence of the monks that made such a huge difference to the whole function. Of course, devotees are always part of all our functions. They came in large numbers. We thank all of them. With that, with this program, the whole function virtually comes to a conclusion. Now, of course, sadhus and devotees can go for prasad. Let us finish with the jai to the trio. Jai Shri Guru Maharaj ki jai, Jai Mahamai ki jai, Jai Swami Ji Maharaj ki